चैनल में आज हम जून का 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टडी का। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंट, डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल इन डिज़ाइन इन डिटेल। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? जनरेट थ्योरी फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, टेस्ट थ्रो ऑब्जर्वेशन, इसमें टेस्ट किया जाता है क्वांटिटेटिव में, और उसमें जनरेट किया जाता है। इसमें क्या है? ओरिएंटेड टू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, और इसमें क्या है? ओरिएंटेड टू स्टेबलाइज कॉजेस एंड इफेक्ट, इमरजेंसी डिजाइन, प्री डिटरमाइन एंड प्री प्लान्ड होता है ये। और इम्फासाइज मीनिंग इंटरप्रिटेशन, इम्फाइज things that can be measured. Research in involve close to data. Researcher is detect decision from data. Researcher is instrument in research manage. Researcher rely on standard protection, measure data collection analysis, spread data collection and analysis, emphasis specific deep and detail, emphasis generate and repletion, use naturally purpose in use, experimental purpose and study control, use in few changes dependent and purpose. Work is a large number of the case. Qualitative and quantitative research can be explained following. वो क्या था? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च थी। अब डिज़ाइन में क्या है? अंडरस्टैंड, सीक। क्वांटिटेटिव में क्या है? सीक अंडरस्टैंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन, इसमें क्या है? सीक एक्सप्लेन एंड कंट्रोल, उसमें क्या है? नॉन कैजुअल, विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ कैजुअल एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या है? एम टू एस्टैब्लिश कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अनइक्वल ऑफ इंडिविजुअल केस एंड इक्वल कॉन्टेक्स्ट, नोटिफाई कंसेप्ट ऑफ फाइनल मोस्ट, जनरेट कॉजेस एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, continuous interpretation, require continuous experience, subjective judgment, coincidence analysis and synthesis data, summary interpretation are studied unit, all the data are control and statistical analysis, unlimited variable, broad set of variables, some expand some not unexpected, limited variable, involve a number of limit variation, field trend researchers subjective observe the variables in field, distinct trend in used in investment, develop and control, questionnaire, holistic emphasis on holistic treatment of phenomena, target on describe price of the whole thinking to happen naturally, create situation to test hypothesis, narrative data and representing in narrow variables, data are recommended in numerical। फिर ये सब क्वेश्चन तो देखे हुए हमारे। ये नया क्वेश्चन आया, स्केल ऑफ मेजरमेंट स्केल आर unambiguous throughout scientific research, especially in discipline of social science. These scales are usually to record data and scientific analysis on this data. There are 4 major scales described below. Measurement scale, normal, oriented, interval, ratio, स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, वो उसके अंदर आप देख लेना, लिखा हुआ है। Definition of statistics. Statistics is the practical or science of collection and analysis number data in large quantity, especially for purpose of interfere population in a whole. From this is representative sample. Statistics is a branch of mathematical science with collection, classification, analysis and prediction of numerical data from driving intervene on basic of theo probability। फिर मीन मेड वाला एक और क्वेश्चन आ गया, कंटिन्यू सीरीज वाला दिया इस बार क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए क्या निकालेंगे? मिड पॉइंट क्या होता है? बीच वाला। तो 2 का भाग देंगे 10 आएगा, तो दूसरे में क्या आ जाएगा? 30, 50, 60, 60 के बाद 70, 90, ऐसे निकालेंगे मिड पॉइंट।
फिर फ्रीक्वेंसी को सबको जोड़ देंगे, 10, 24, 36, 20, 10 तो 100 आ जाएगा। फिर इन दोनों को इंटू कर लेंगे, एफ को एफ और एक्स को इंटू कर लेंगे और इन सबको जोड़ देंगे। फिर मीन का सम ऑफ द सिग्मा एफ एक्स बटा सम ऑफ द एफ कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो आएगा आंसर, फिर मोड, इसमें मोड पूछा हमें क्वेश्चन में, हाँ मोड पूछा है, मीन, मीडियम और मोड। मोड पहले निकाल रही है। मोड इजी निकालना होता है, कुछ भी नहीं करता है, जो दी हुई है वो की वो वापस लिख दो सीरीज, कंटिन्यू सीरीज में, और जो सबसे ज़्यादा होता है उसको है ना F1 मानते हैं। इसको मानेंगे F1, इसको मानेंगे F0 और इसको मानेंगे F2, ऐसे मानेंगे। और फिर फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप। फ्रीक्वेंसी ऑफ द F1 क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप। F0 क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप जस्ट अपर द मॉडल ग्रुप। और F2 क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप जस्ट आफ्टर द मॉडल ग्रुप। H यानी क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप। L क्या है, 40, इधर दिया हुआ 40। F क्या हो गया, 36। F0 क्या हो गया, 24 और F2 क्या हो गया, 20 और H क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 का। फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे और फिर अपना आंसर निकाल देंगे। और मीन कैसे निकालते हैं, मीन के लिए CF निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ में CF कैसे निकालेंगे, ईजी है, 10 का 10 लिख दो। फिर 10 का 10 निकलने के बाद 10 में 24 जोड़ो 34 आएंगे, 34 में 36 जोड़ो 70 आएंगे, 70 में 20 जोड़ो 90 आएंगे, 90 में 10 जोड़ो 100 आ जाएंगे। और फिर फॉर्मूला होता है मोड का, सॉरी मीन का। मोड में तो कुछ नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी वाला निकालना है। मीडियन में क्या करना है, CF निकालना होता है। मीडियन में फिर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H करके। L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। C यानी क्या हो जाएगा, क्यूमिटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट अपर मिडिल क्लास। अपर वाली संख्या होती है, F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास। H क्या होती है, क्लास इंटरवल। L बराबर 40 हो गया। CF क्या हो जाता है, ऊपर वाली संख्या, तो 34 हो जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें हम कैसे लगते हैं, इसमें n बराबर करके, n मीडियन में n बटा 2 करके लेते हैं ना। n अपने पास कितना होता है, 50 होता है, 100 होता है ना, तो 100 बटा 2 करेंगे तो 50 आएगा। 50 किस में आएगा, 70 वाले में। तो इसको हम मानेंगे अपनी संख्या और इसके ऊपर वाली संख्या को CF लेते हैं और फिर उसको क्वेश्चन में लिखते हैं। फिर I यानी कि L बराबर 40, CF 34, F 36, H बराबर 20। फिर फॉर्मूले में सब लिख देंगे और आंसर निकालेंगे। ये अपना ख़त्म हो गया पेपर। थैंक यू सो मच। ये अपना 2014 का पेपर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।